Hello friends, how are you all? Hope you all are good. Today I am Satyapati going to teach you maths of class 8th. Chapter name is rational number. In our previous video we have already discussed about the properties of rational numbers, whole numbers and integers numbers. The properties were closure property, commutative property and the associative property. Okay, so I have told you we have made a chart of each number and we have talked about how the closure property is applicable in whole number, integers and rational numbers. Today we are moving forward, moving next to the topic. The topic is the role of 0 and the role of 1 on your textbook, page number 10. Okay, hope you have completed your homework. That homework was given to you, that try these boxes. Huh? You have to complete that, try these box. So the very first topic of today is the role of 0. Okay, what is the value of 0? 0 is a value which, whether it is added to a number or subtracted to a number, does not affect the number. So the role of 0 is nothing but if you are adding 0 to any number, you will get the same number, means it will not affect the number and you can perform the operation of addition. So in simpler words or in uh, mathematical word, today's first topic is the role of 0. Role of 0. Role of 0 means if you add, for example, I am having 15 and I am adding 0, I will get what? 15 itself. I am having minus 2 and I am adding 0, I will get minus 2. I am having 15 by 4 and I am adding 0, I will get 15 by 4. So if you will add 0 to any given number, you will get the same number. So if you are getting the same number, then 0 can be a number which can be added to any number or subtracted to any number, that will not affect the answer. So 0 is called, 0 is, in another words, 0 is called additive identity. Additive identity मीन्स, जैसे देखें समझें, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर में कुछ जोड़ भी दो तब भी उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े. सो इफ़ यू आर एडिंग 0 टू एनी नंबर, दैट विल नॉट अफेक्ट द नंबर. मीन्स ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म कर लिया हमने, उसके बावजूद भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा. दैट इज वाई द 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, ध्यान रखना, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. पर अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पूरे नंबर को 0 कर लेगा. तो 0 सिर्फ एडिशन में आइडेंटिटी है, अदर देन दैट इसका अलग रोल है. द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इज रोल ऑफ 1. रोल ऑफ 1. रोल ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी नंबर में 1 ऐड करोगे तो इट विल डेफिनेटली चेंज द नंबर. इफ़ यू विल सब्सट्रैक्ट 1 टू एनी नंबर, इट विल डेफिनेटली चेंज द आंसर. But if you multiply the 1 with any number, for example, I am multiplying 1 with 15, then I will get 15 itself. If I am multiplying 2 with 1, I will get minus 2 with 1, I will get minus 2. If I will multiply 15 by 4, 15 by 4 is a rational number, and I am multiplying 1, I will get 15 by 4. Means when you multiply 1 to any given number, you will get the same number. So that is why 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity.
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर आप 1 का इंटू किसी में करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर। सो आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, इसको आप ऐड करो तो उसके ऐड करने से कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, now moving to the next, negative of a number, negative of a number। चलिए इसी में देख लेते हैं, फिर अपन एक साथ आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 है and I want to find the negative of the same number. What I will do, I will put a negative sign in front of 5. ओके, यही करेंगे हम नेगेटिव फाइंड करने के लिए। पर क्या ये सही तरीका है नेगेटिव फाइंड करने का? ये नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव चलिए हमने फाइंड कर लिया, तो फिर हम पता कैसे चलेंगे कि दिस इज अ नेगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर? सो समझिएगा ध्यान से, नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज सेड टू बी अ नंबर दैट number is added to the given number and the result will become 0। नेगेटिव नंबर वो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर फाइंड करना, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना 10 का नेगेटिव नंबर्स। सो इफ आई एम एडिंग 10 विथ इट्स नेगेटिव नंबर, इफ आई एम एडिंग 10 विथ इट्स नेगेटिव नंबर, द रिजल्ट बिकम्स 0, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ नंबर। जैसे देखिए 15 and I want to add its negative number। सो नेगेटिव नंबर लाइन में आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। सो 15 का नेगेटिव क्या होगा? -15 एंड आई वांट टू ऐड द नेगेटिव ऑफ द सेम नंबर, नेगेटिव ऑफ द सेम नंबर। व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 0 एज अ रिजल्ट। ओके, 0 एज अ रिजल्ट। मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताया था नंबर लाइन के लिए कि अगर आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो तो यू आर एडिंग। सो 15 प्लस -15, -15 इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव ऑफ 15। 15 का नेगेटिव कौन है? -15 एंड यू आर एडिंग पॉजिटिव ऑफ द नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ नंबर एंड यू आर गेटिंग 0। So when you are adding negative of a number with its positive number, you will get 0, that is called negative of a number। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं हम इसको? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि व्हेन यू ऐड द particular number to a number and the result becomes 0, then that number is said to be the additive inverse of the given number। अगर आप किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करते हो और आपको ऐड करने के बाद 0 मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। ओके, अच्छा रेशनल नंबर्स में कैसे होता होगा? तो देखिए 2/3, इसके साइन में नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस प्लस -2/3। इसमें माइनस आप 2/3 तो हर जगह आप माइनस, मतलब -2 और -3 अलग अलग नहीं लिखोगे, एक ही टाइम पे माइनस लगा दें एंड यू विल गेट द 0। सो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2/3। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, रेसिप्रोकल में आते हैं। ओके, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 एंड नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तीनों के बारे में समझिए। Additive identity means, well, whenever you will add the 0 to any given number, whenever you will add the 0 to any given number, it will not affect the answer. That is why 0 is said to be additive identity। Now at role of 1, if you multiply 1 with any number, it will give you the, it will give you what? It will give you the same number while multiplying with 1। So 1 is called multiplicative identity। Negative of a number is called when you add the same number with
opposite sign and you will get the 0 as a result, then that negative number is said to be the additive inverse of the given number. Any doubt? Okay. Now the next topic is reciprocal. What is the next topic? Reciprocal. इसको ध्यान से देखेंगे आप. रेसिप्रोकल बहुत इजी है. अभी आपने जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, अब आपने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल. तो जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको सेम नंबर ही मिल जाता था. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू गिवन नंबर गिव्स यू द प्रोडक्ट एज 1. अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें आप गिवन नंबर का इंटू करो और आपको रिजल्ट में क्या मिले? 1. समझ में आ रही मेरी बात? मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 है, सो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विथ 2 सो दैट आई गेट द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड द नंबर विच आई हैव फाउंड टू मल्टीप्लाई एज 1. ठीक है. 2 में मैं किस नंबर का गुणा करूंगा कि मुझे क्या मिल जाए? 1 मिल जाए इंटू करने के बाद. चलिए चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5 एंड आई वॉन्ट द रिजल्ट एज 1. तो इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ तो मल्टीप्लाई करना है. क्या मल्टीप्लाई करूँगा? तो मल्टीप्लाई अगर मैं 1 करूँगा तो आई विल गेट द सेम नंबर. एडिटिव आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके हैं. इफ आई विल मल्टीप्लाई 1 आई विल गेट द सेम नंबर. If I will add the 0, I will get the same number. If I will add the negative of the number, I will get the 0. मुझे 1 चाहिए तो हमने ऐड करके देख लिया, सब इंटू करके देख लिया, सब्सट्रैक्ट करके देख लिया. अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बनती है, क्या? डिवाइड करके देखना. क्या बनती है? डिवाइड करके देखना. तो डिवाइड में हम ऐसे करेंगे कि we will multiply 5 with 1/5. ठीक है. 1/5 कैसे आया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा. जब मैंने पहले वीडियो में हमने बात की थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस दैट एनी नेचुरल नंबर इज एनी इंटीजर नंबर, एनी नंबर इज सेड टू बी द रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q. अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है. अब ये 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर. हाँ, 5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट. अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर. बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, सो दिस इज अ रेशनल नंबर. तो 5/1 इज अ रेशनल नंबर. और अभी हम 1 से डिवाइड कर रहे थे किसको? 5. अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे किसको? 1 को. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5. एंड व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 5 कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट व्हाट? 1. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर. सो द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट विल बिकम 1. सो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द multiplication number by which when multiplied with the given number we will get the product as 1. रेसिप्रोकल का मतलब है किसी भी नंबर का अगर हम किसी नंबर में गुणा करें तो हमको कितना मिलना चाहिए? प्रोडक्ट 1 मिलना चाहिए. चलिए, तो अगर हम इसको जनरल एग्जांपल में बात करें तो मान लीजिए हमारा एक नंबर है a/b. हमारा क्या नंबर है? a/b. a/b इज अ रेशनल नंबर. ठीक है. a/b इज अ रेशनल नंबर. तो अगर मैं इसमें b/a का इंटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1. a/b इंटू b/a इज इक्वल्स टू 1. तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता मतलब a/b 1/5. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/1. 5/10 ओरिजिनल नंबर होगा, इसी रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/5. तो ये हो गया क्या? रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ी सी चर्चा. अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 1.1 पे. ठीक है. किस पे चलते हैं? 1.1 पे. चलिए देखते हैं. अच्छा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की. एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या कहा कि 0 ऐड करोगे तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अब हमने उसी के साथ साथ नेगेटिव ऑफ अ नंबर पढ़ा, तो उसमें हमने कहा कि अगर आप किसी नंबर का अपोजिट जोड़ दोगे, नेगेटिव जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। हमने इधर कहा कि हम 1 का इंटू करेंगे किसी भी नंबर में तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। फिर हमने दूसरी तरफ क्या कहा कि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका इंटू करने पे क्या मिल जाए, 1। ठीक है, तो यही होता है दोनों का इंटर रिलेशन। ठीक है।